To all of you, my dear student. Once again, I Bipin sir welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. My dear student, previously I had explained you chapter number 1 and poem number 1. So today I am here with new chapter number 2, a gift of chappals for you all. So before we start reading the chapter, let us find out some points which is included in the chapter, what this chapter revolves around. So I would be summarizing the chapter afterwards, but before reading the chapter, let us see. Mridu, there is one girl of very young age whose name is Mridu, who is being brought up in Madras, which is now known as Chennai, and she lived with with Tapi. Tapi is the name of her grandmother. Tapi is called as a grandmother. Grandmother is being called as Tapi, and Thatha. Thatha means Dadaji, means grandfather. It is a Tamil language. So one afternoon, what happens? Mridu's grandmother takes her to her aunt's house, Rukumani. Name of her aunt was Rukumani, to meet her cousins, and the name of her cousin were Lali, Ravi, and Meena. These three were her cousins. These three were her cousin. So this chapter revolved around a gift of chappals. Means there was a gift which was being covered with chappals. Chappal means slipper, which we usually generally wear when we are at home. Normal chappal, normal footwear, it is known as a chappal. So what happened? Starting with a chapter part 1. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. What happened? When her grandmother, means Mridu's grandmother, when she took her to Rukumani, means her aunt's house, what happened? रुकुमनी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल देती हैं, और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, रवि और मीना यानी कि जो कज़िन थी किसकी, मृदु की, ये दोनों घर में से बाहर निकलती हैं और रवि मृदु को घर के अंदर खींच लेता है। उसी समय मृदु बोलती है, अरे रुको, मुझे अपना चप्पल तो बाहर निकाल लेने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. और उसने अपने चप्पलों को बड़े ही केयर से, बड़े ही ध्यान से उसने कहाँ निकाल दिया, एक बड़े से काले वाले चप्पल के बगल में अपने स्लीपर को निकाल देती है। और वो जो काला वाला चप्पल होता है, वो काला वाला चप्पल एक्चुअली ग्रे कलर में हो गया होता है, क्योंकि उस पर धूल लग गई रहती है। देखो, जैसे कि आप जब भी धूल भरे रास्तों से चलोगे तो आप देखोगे कि आपके चप्पलों में जितने दूर आपके फुट, यानी कि जितना दूर आपका टो है, उतनी दूर पे एक सिंबल, एक साइन, एक निशान बन जाता है, और बाकी जो धूल से बढ़ जाता है चप्पल, वो ग्रे कलर में दिखने लगता है। तो इसी तरीके से उसका चप्पल भी हो गया था, पूरा चप्पल ग्रे, मतलब कि डस्ट से पूरा भर चुका था चप्पल, और उस पर टो के निशान बड़े आसानी से दिखाई पड़ रहे थे उसके सामने वाले हिस्सों पर। द मार्क्स फॉर 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो मार्क्स उस चप्पल पर आए हुए थे वो बड़े लंबे लंबे थे और बहुत ही पतले, यानी कि लंबे और पतले उसके अंगूठे, यानी पैरों के अंगूठे कैसे थे, लंबे और पतले उस चप्पल पर, जो चप्पल ब्लैक कलर का था उस पर। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो सोच पाती कि वो चप्पल किसके हैं, क्योंकि रवि, इससे पहले कि वो सोच करके समझ पाती, रवि ने उसको पीछे वाले आंगन में लेकर के चल गया, जहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं, कड़ुए बैरिये की, मतलब बीटर बैरीज़ की, और जामुन टाइप के उनके झाड़ियाँ थीं, वहाँ पर लेकर चल जाता है। देयर इनसाइड a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर क्या होता है, अंदर की तरफ एक फटा हुआ फुटबॉल था जिसके चारों तरफ कुछ बोरे रखे हुए थे और उसके अंदर कुछ बालू रखे हुए थे। उसके अंदर एक बहुत ही छोटी सी बिल्ली का बच्चा था, और वो क्या कर रही थी, वो कोकोनट का जो आउटर शेल होता है, जो ऊपर वाला कवरिंग होता है, उसका हाफ जो मतलब हेमिस्फीयर शेप में उसमें मिल्क रखा हुआ था, वो उसमें मिल्क पी रही थी।
We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing, said मीना। आज ही हम लोगों ने इसको बाहर पाया है, ये बाहर बेचारी रो रही थी और रो रही थी बेचारी, मीना ने कहा। इट्स सेक्रेट, अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ सी नो वी हैव अ कैट। ये बहुत ही गुपचुप बात है। अम्मा कहती हैं पार्टी, मतलब मेरी मम्मी, हमारी मम्मी कहती है पार्टी मतलब कि ग्रैंड मदर, तमिल भाषा में ग्रैंड मदर को पार्टी कहा जाता है। पार्टी यानी कि दादी माँ, दादी माँ इसको पड्डू मामा के घर पे छोड़ देंगी अगर उनको हमारी बिल्ली के बारे में पता चल जाएगा तो। नेक्स्ट पैराग्राफ, पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमको जानवरों के साथ दयालु होना चाहिए, लेकिन जब भी हम उनके साथ दयालु होते हैं वो हम पर चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं अरे 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 इस गंदे से जानवर को घर में मत लाओ। सेड रवि, ये कौन बात कहता है? ये रवि कहता है। डू यू नो हाउ हार्ड इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? Party saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. देखो, तुमको पता है थोड़ा सा दूध किचन से लाना कितना कठिन काम है, कितना हार्ड काम है। आज भी अभी दादी ने मुझे एक गिलास मिल्क के साथ देखा और मैंने उनसे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी मुझे उसका काफ़ी सारा हिस्सा पीना पड़ा ताकि मैं उनको मिसगाइड कर सकूं, ताकि वो ये ना समझ पाएँ और वो जान पाए कि हाँ मैं सच में इस दूध को पीने के लिए ही ले रहा हूँ। और बाद में क्या होता है, बाद में सी वांटेड द टम्बलर बैक, बाद में वो उस गिलास को भी वापस मांगती हैं। पार्टी पार्टी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। पार्टी, दादी माँ मैं इसको खुद ही धुल लूँगा, मैं क्यों आपको परेशानी में डालूँ, मैंने उनसे कहा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back to wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। और उसके लिए मुझे उस सबसे पहले दौड़ करके इस दूध को ला करके इस कोकोनट के शेल में डालना था और वापस फिर जा करके इस ग्लास को धुलना था और उसी जगह पे वापस रख देना था, इससे पहले कि वो हकीकत में डाउटफुल हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। और अब हम लोगों को कोई और तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। महेंद्रन, हु वाज महेंद्रन? महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, वो छोटी सी बिल्ली महेंद्रन का नाम सुन करके मृदु बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो कोई सही नाम नहीं था, वो तो एक क्यूट सा किटी का नाम था, कैट का नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। हकीकत की बात यह है कि उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है, MP पुनई शॉर्ट में अगर तुमको अच्छा लगता है। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट इज फॉर लाइक अ लायंस मेन, एंड यू नो what the emblem of ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu। और देखो कितनी ही अच्छी प्रजाति की ये बिल्ली है, क्या तुमको पता है? देखो इसके फर देखो कितने अच्छे हैं, एक शेर की तरह, एक सिंह की तरह लगते हैं। और तुमको पता है पुराने समय में पल्लवा राजाओं के सिंबल क्या थे? तुमको नहीं पता? वो मृदु की तरह एक्सपेक्टेड आइज से देखता है। मृदु गिगल्ड, मृदु ना कुछ जानती नहीं थी, इसी वजह से मृदु कुछ बोल नहीं पाती है, हिचकती है। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर, डोंट यू नो अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में सोचो, लेकिन मैं तुमको कुछ समय दूंगा। ये बात तो सही है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? क्या गई हो? वो थोड़ा सा मिस्टीरियसली, मतलब कि थोड़ा सा सेक्रेटली पूछता है, जानना चाहता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज ठाटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जब हमारी क्लास महाबलीपुरम की ट्रिप पर गई थी तो मैंने वहाँ पर इसके ठाटा यानी कि दादा के दादा के दादा के दादा जी का स्टैचू देखा था। किसके? उस बिल्ली के। बताइए।
फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम वेरी सेम एंशिएंट किट। और तथ्य की बात यह है, ये जो महेंद्रन बिल्ली है वो उसी की नेक्स्ट जनरेशन है, वहीं से वो नेक्स्ट जनरेशन आई है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। ये एक घनिष्ठ रिश्तेदार है, एक घनिष्ठ उनकी रिलेटिव है। वैज्ञानिक तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये कुछ और लायन से कुछ और अलग नहीं है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, ये पल्लवा का लायन है जो कि सिंबल था पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन, रवि बताता रहता है, वॉकिंग अराउंड बिटरबेरी बुश, वो साथ ही साथ उस कड़वे बेरी के झाड़ियों के बगल बगल चलता हुआ रहता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हाथ में ट्विग लिया रहता है, एक घास का टुकड़ा लिया रहता है, उसको ऊपर नीचे वेव करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये उन्हीं लोगों की, वही पूर्वजों की, जो पूर्वज पुराने जो ऋषि कैट थे उन्हीं की ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट डॉग। और अगर मैं तुमको याद दिला दूं तो वो लोग बिल्लियों की पूजा पुराने इजिप्ट में, यानी पुराने समय में जो मिस्र था, मिस्र देश था, वहाँ पर भी करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कितने अच्छी तरीके से वो अपने ही आवाज़ को प्यार करती है, मीना और मृदु एक दूसरे को देखते हैं। What does that have to do with anything, मृदु डिमांडेड। तो अब इसके साथ क्या किया जाए, क्या और किया जाए, मृदु इस चीज़ को पूछती है। ओह, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बास्टर्ड, या दैट्स इट। ओह, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये कैट इजिप्टियन बिल्ली भगवान के, यानी इजिप्टियन बिल्ला भगवान के वंशज है, भगवती के नहीं। बास्टर्ड इज अ यूजिंग वर्ड, और यही सही है। सो इसीलिए वेल वन ऑफ डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे इन पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वॉज महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुणे हियर ऊप एक ही श्रीक्ड वेरी प्लीजेंट विथ हिमसेल्फ। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। एक जो वंशज थी बिल्ली भगवान की, वो जो है पिस्टो अवे का मतलब किसी ने छुपा करके अपने आप से शिप में या एयरक्राफ्ट में बिना किसी के नोटिस में लाए ट्रैवल करवाता है, वो उसी को कहते हैं स्टो अवे। तो पल्लवा के शिप में किसी ने छुपा के रख दिया था, और उसी के वंशज थे महाबलीपुरम की ऋषि की कैट, जिसकी ये वंशज है। रवि अपने ट्विक को, यानी जो घास का टुकड़ा रहता है, वो महेंद्रन की तरफ दिखाते हुए कहता है ये MP पुणे यहाँ पर, और यही है। वो काफ़ी तेज़ से चीखता है और अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा प्लीज्ड हो जाता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल्फ। महेंद्रम ऊपर देखती है चौंकते हुए, वो अभी अभी अपने क्लॉज का मतलब पंजों को शार्प कर रही थी। किस पे? कोकोनट शेल पे। कोकोनट का जो टुकड़ा था, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग था, यानी खोपड़ी थी, उसके ऊपर अपने पंजों को मार रही थी। बट वर्स दैन रवीज ऑफर ऊपीक वॉज ए क्रीच। लेकिन जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि जो रवि का चिल्लाना था वो क्रीच था, उसके बारे में। फ्रॉम द विंडो, जो खिड़की से, वॉट ए वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टल MP पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिट्स विट्स। कितना स्ट्रेंज, अनयूजुअल सा आवाज़ था। मृदु तो चौंक गई थी, MP पुणे यानी कि वो जो बिल्ली थी वो भी डर गई थी, अपने बुद्धि से समझ नहीं पा रही थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that he had been set out to dry। वो उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो कूदती है किसकी तरफ? बैम्बू ट्रे की तरफ, जहाँ पे सूखी मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी गई थी। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself। अपने आप को उसके नीचे छुपाने की कोशिश में उसने कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर गिरा लिया। म्याऊ, he hold miserably। और फिर जब वो मिर्ची उसके ऊपर आती है तो म्याऊ करती है। कैसे करती है? म्याऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। इसी तरीके से आवाज़ चलती रहती है। वो क्या आवाज़ है मृदु? दैट्स लर्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। वो लल्ली है,
वो वायलिन के साथ खेलना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गो ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। वो कभी भी कोई चीज़ नहीं पढ़ सकती। जो म्यूज़िक का मास्टर है वो हमेशा एक ट्रेन की तरह बजाता रहता है। वाइल लली ऑल द टाइम डेरलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और जबकि लली हमेशा वो ट्रेन एक पटरी पर लेकर के जाना चाहता है और लली हमेशा पटरी से गाड़ी को उतार देती है, हमेशा ट्रैक से गाड़ी को उतार देती है। सो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर कमिंग टू द सेकंड वी आर हैविंग हियर कंप्रहेंशन चेक। व्हाट इज सेक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन बैकयार्ड। कौन सा ऐसा सेक्रेट था जो मीना मृदु के साथ बैकयार्ड में शेयर करती है। हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर किटन। रवि किटन के लिए मिल्क कैसे लाता है। हु डज से द किटन एंसिस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। कौन ये कहता है कि किटन के एंसिस्टर्स कौन हैं, क्या तुम सही मानते हो। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे, दिस शोज दैट। ये क्या बताता है रवि जो एमपी पुणे के बारे में काफ़ी सारा बताना चाहता है। यू हैव टू चूज आउट। वट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल मृदु एंड फ्राइटन महेंद्रन। कौन सी ऐसी आवाज़ थी जो मृदु को चौंका देती है और महेंद्रन को डरा देती है। तो माय डियर स्टूडेंट, टिल कॉम्प्रहेंशन चेक टुडे आई विल एक्सप्लेन यू। You have to write down the answer by yourself, and in the evening I want the answer of all these question on your side. Next time when I would be sharing the exercises, I would be sharing the answers of this question, but before that I want the answer from your side. But you have to learn and write all the word meanings which are included in the chapter, and if you find some of the word meaning which are hard for you, just ask me, just drop a question to me. I would be giving you the meaning. Thank you and have a nice day.